Good morning, everyone. This is Mahima from GVM Girls College, Sonipat. Today, we are going to discuss an important topic of auditing. And today's question is: what do you understand by auditing? Define it and give its element. फ्रेंड्स, ये हमारी बुक का सबसे स्टार्टिंग का क्वेश्चन है. जैसे कि इसमें पूछा गया है, व्हाट इज ऑडिटिंग एंड डिफाइन इट एंड गिव इट्स एलिमेंट्स. In starting, we will discuss about the meaning of auditing. Auditing होता क्या है? Auditing implies the examination of books of accounts and related documents of an organization in order to correctly estimate their accuracy, completeness and regularity. Auditing हम करते क्यों हैं? Auditing होता क्या है? Auditing होता है एग्जामिन करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कि भाई वो अच्छे से मेंटेन की गई है, करेक्ट है भी या नहीं है, ट्रू एक्यूरेट है या नहीं है. Such an examination is carried out by a competent and unbiased person with the help of evidences, documents, information and explanation gives to him. जो हमारे ऑडिटिंग जो होगी, ऑडिटिंग करता है ऑडिटर, और ऑडिटर ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि अनबायस्ड हो और विद द हेल्प ऑफ एविडेंसेस और इंफॉर्मेशन से वो रिजल्ट निकाल सके कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट अच्छे से मेंटेन हुई है या नहीं हुई है. इसका एग्जांपल है, if a person goes to a doctor to have himself examined, the doctor only after a thorough examination of his body gives his report as to whether he is healthy or not, and if not, what is the ailment he is suffering from. In the same manner, a businessman gets his books of account examined by a doctor of books of account, that is, the auditor, who after a thorough examination of the books gives his report as to whether or not they give a true and fair view of the state of affairs of business, and if not, then what are the errors, deficiencies and faults in them. एग्जाम्पल ये था कि मतलब एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाएगा, तो पेशेंट को डॉक्टर चेक करेगा कि भाई वो हेल्दी है नहीं है. अगर वो हेल्दी है तो वो तब भी रिपोर्ट देगा उसको. अगर वो हेल्दी नहीं है, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसको उसका ट्रीटमेंट चलेगा, उसके लिए मेडिसिन वगैरह देगा, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चलेगा. ऐसे ही ऑडिटर भी है. अगर हमारे बिजनेस की सभी अकाउंट्स जो ट्रू एंड फेयर है, तो वो तब बोलेगा कि भाई ये फेयर है, और अगर नहीं है तो वो बताएगा कि भाई क्या क्या डेफिशिएंसीज है इसमें, क्या क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं एंड एक्सेट्रा. नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग. According to Montgomery, auditing is a systematic examination of the books and records of a business or other organization in order to ascertain or verify and to report upon the facts regarding its financial operation and the result thereof. This definition is given by the Montgomery. In our book, many of the definitions is given. The proper definition is that auditing is a special and critical examination of the books of account of a business organization conducted by a competent and unbiased person with the help of vouchers, documents, information and explanation provided by the organization, on the basis of which he can report on the books of accounts for a specific period as to whether the accounts are complete and drawn up according to conventions or not. जो हमारे अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं वो कंप्लीट भी है या नहीं है. whether the balance sheet gives a true and fair view of the financial position of the organization, कि भाई जो हमने ऑडिटिंग में यही चेक आउट किया जाएगा कि बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रही है या नहीं दिखा रही है. एंड लास्ट पॉइंट इज whether the profit and loss of accounts depicts the true profit or losses of the organization or not. ऑडिटर ये भी चेक करता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहे हैं भी नहीं दिखा रहे हैं, वो ट्रू है भी या नहीं भी है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग. द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एलिमेंट ऑफ auditing are, the first point is organization or institution. Initially only business organization were taken into consideration from the point of view of auditing. ऑडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है बस उनकी ही ऑडिटिंग की जाती है. फॉर एग्जांपल, आरजे विलियम्स, बार्टली बॉय एंड स्पेशियर एंड पेगलर हैव डिफाइंड ऑडिटिंग ओनली एज एन एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ अ बिजनेस. जो आरजे विलियम्स, बार्टली बॉय है, इन सब ने भी यही डिफाइन किया है
कि ऑडिटिंग रेफर्स टू द एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ अ बिजनेस, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है उनका ही ऑडिटिंग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल पर्सन। इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल पर्सन क्या होगा कि भाई जो ऑडिटर है वो इम्पार्शियल है नहीं है, उसको कोई पार्शियलिटी तो नहीं कर रहा, और ना ही उसका कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कोई पर्सनल इंटरेक्शन होना चाहिए। The work of auditing has to be done by a person who is not in any way related to the business or the organization, so that he may do his job impartially and without any bias। भाई वो अपनी जॉब impartially करना चाहिए और without any bias, उसके मन में कोई भी biased feeling नहीं होनी चाहिए। And the next point is books of accounts. An audit is mainly an examination of the books of account. However, along with the books of account, other book concerns the constitution of the business such as share transfer, register etc. also examined। मेनली ऑडिटिंग में हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक होती है, मतलब मेनली तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही होगी भाई, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेट्रा मेंटेन अच्छे से किए गए हैं नहीं किए गए। बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ में जो अदर अदर बुक्स हैं जैसे कि शेयर ट्रांसफर रजिस्टर्स वगैरह है, वो भी ऑडिटर चेक आउट करता है ऑडिटिंग के दौरान। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरिफिकेशन। The examination of books of account in an audit is merely to know their mathematical accuracy. Rather, it is a specific and critical examination of the books of account so as to establish the accuracy, truthfulness, completeness and extent of compliance with regulation of the accounts। वेरिफिकेशन में मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस है वो तो चेकआउट किए ही जाएंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ में जो स्पेसिफिक एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन होगी वो भी चेकआउट, वो भी उनकी भी बुक्स ऑफ अकाउंट चेकआउट की जाएगी, सो दैट टू एस्टेब्लिश द एक्यूरेसी, जिससे कि बिजनेस की एक्यूरेसी, ट्रूथफुलनेस, कंप्लीटनेस जो होगी ऑडिटिंग की वो चेकआउट की जा सकेगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज पीरियड। An audit is an examination of the books of accounts for a specific period, which is usually the financial year। जो ऑडिटिंग है वो किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जाएगी, और बुक्स ऑफ अकाउंट मोस्टली एक ईयर की जाती है, जो कि फाइनेंशियल ईयर का जब एंड होता है हमारा 31 मार्च को, तभी चेकआउट की जाएगी और तभी उसके बाद ही ऑडिटिंग होगी। कि जैसे हमारे बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस है वो लास्ट जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा हमारा प्रीवियस ईयर होगा उसका ही तो मेंटेन किए जाएंगे उन्हीं हेल्थ अकाउंट्स की, तो हमें ऑडिटिंग करनी है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज वाउचर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। इन एन ऑडिट द मेन बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन आर वाउचर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। The books of account should not contain any transaction without a voucher, and neither should there be any voucher that is not to be included in the books of account। जो हमारी ऑडिटिंग होगी, ऑडिटिंग में वाउचर्स एंड डॉक्यूमेंट्स चेक करता है ऑडिटर। वाउचर्स होते क्या है? वाउचर्स होते हैं जो हमारे बिल है कि भाई हमने कितने की सेल हुई है, कितने की परचेज हुई है एंड कितना रॉ मटेरियल आया है, इस चीज के वाउचर्स मेंटेन किए जाते हैं। उन वाउचर्स की हेल्प से ही हम उन वाउचर्स की एंट्री हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करते हैं, तभी फाइनल रिजल्ट आता है। तो इसलिए सभी वाउचर्स चेकआउट किए जाते हैं अकाउंट उसके ऑडिटर के द्वारा कि भाई वाउचर सारे जो भी वाउचर्स में अमाउंट है वो सारी अमाउंट्स एज इट इज बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखी भी गई है नहीं लिखी गई है, ये सब हमारा कोई भी ऐसा वाउचर्स नहीं होता कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन ना किया गया हो, ये कंपलसरी है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। इवन थ्रू द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट are the vouchers। However, if the auditor is not satisfied with the vouchers, then in order to verify the transaction, he can call for the information and explanation from the management। अगर बाई चांस ऐसा हो कि ऑडिटर भी सेटिस्फाई नहीं है वाउचर से, तो वो किसी भी मैनेजमेंट के जो बिजनेस का मैनेजमेंट के पर्सन होंगे उनको बोल सकता है कि भाई हमें मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, और उन इन्फॉर्मेशन की एक्सप्लेनेशन भी उन मैनेजमेंट के पर्सन को देनी ही पड़ेगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू रूल्स। The auditor has to certify in his report as to whether the books of accounts are in accordance with the legal enactment under which the organization is covered। जब ऑडिटिंग होगी, ऑडिटर के द्वारा ऑडिटिंग की जाएगी, तब उसमें ये भी चेक होगा कि भाई जो रूल्स जो अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। कि जैसे कंपनीज एक्ट में जैसा मेंशन है कि जैसे ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस बनेंगे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग,
वो मेंटेन किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, ये भी चेक किए जाएंगे ऑडिटर करेगा इनको भी सबको चेक। द लास्ट पॉइंट है साइंस एंड आर्ट। ऑडिटिंग इज बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। ऑडिटिंग दोनों ही है, साइंस भी है और आर्ट भी है। इट इज अ साइंस बिकॉज इट हैज अ सर्टेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विच हैव टू बी अचीव्ड। ये साइंस इसलिए है क्योंकि इसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव गिवन है विच इज टू बी अचीव, जो ऑब्जेक्टिव अचीव होने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव गिवन होंगे उसमें। इट इज एन आर्ट बिकॉज इट ऑल्सो गाइड्स अस। ये आर्ट भी है क्योंकि इसमें है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस भी गिवन है कि भाई इस ये मेथड्स होंगे, ये स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे ऑडिटिंग में, तो ये आर्ट भी है। दस ऑन वन हैंड ऑडिटिंग इज अ साइंस वेयर एज ऑन अदर हैंड इट इज ऑल्सो एन आर्ट। Fred, these were the elements of auditing. Lastly, the conclusion of this is auditing। ऑडिटिंग आज से नहीं चल रहा है, ऑडिटिंग बहुत पहले से होती आ रही है। पहले जो एंशियंट टाइम में था, एंशियंट टाइम में ऑडिटिंग की जाती थी, वो वोकल होती थी, ओरल होती थी। और अब और नाउ डेज अब बिजनेस, पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ही ऑडिटिंग की जाती थी, बट अब जो अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो अदर फर्म्स है, जैसे कि मतलब हमारे कॉलेज हो गए, हमारी यूनिवर्सिटीज हो गई, उनकी भी ऑडिटिंग, उनके भी अकाउंट्स ऑडिट किए जाते हैं। थैंक्स, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।